Very good morning to all of you. I welcome you all back again on this fourth part of Principles of Inheritance and Variation, class 12th Biology, chapter number 5. So let us continue with this chapter. We had completed till the part 3 and now moving on to mutations and pedigree analysis in this concept. So this is very important part of this chapter, mutations. So let us understand what are mutations. The mutations means अगर DNA का कोई भी sequence है, if because of any reason this sequence gets changed, अगर DNA का sequence है for example ATCG, and for example because of any reason, because of the physical, chemical or biological reason, any reason, this T becomes A, right? Or this G becomes C now. So this is called mutation. So mutation is only the alteration in the sequence of the chromosomes, sequence of the bases on the chromosomes, right? So there are two kind of mutations on the basis of a broad category, point mutation and a frame shift mutation. Point mutation, as the name suggests, you can see here by enlarging the image, this one image, that in case there is a change, just now I had shown you ATCG, when it got changed to AACG, that means T got changed into A. This means that there is mutation at one particular point, one particular base. So this is called point mutation, right? और अगर पूरा reading frame ही change हो जाएगा, which we will discuss later, so that will be a frame shift mutation. अभी हम focus करते हैं खाली point mutation के ऊपर. तो point mutation you have understood, एक base change हो जाएगा from one base to another, right? Now this is again of many different kinds, 3 different categories, this point mutation. Now this point mutation can be this can be a silent mutation, a nonsense mutation, and a missense mutation. Now, what do we actually mean by this? ये silent mutation क्या है? ये point mutation क्या है? ठीक है? So, silent means अगर कोई base change हुआ भी है, but there is no change in the amino acid. You will study in molecular bases in the next chapter that 3 different base pairs will make up one particular amino acid, right? So अगर एक base pair change भी हुआ है, for example TTT, it got changed into TTC था, that got changed into TTT, ठीक है? यानी कि एक लास्ट वाला C got changed into T, पर उससे भी वही अमाइनो एसिड कोड होगा आर्जिनिन, राइट? सॉरी लाइसिन. तो क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे? साइलेंट म्यूटेशन, कि बेस पेयर चेंज भी हुआ है लेकिन हमारे अमाइनो एसिड पे कोई चेंज नहीं हुआ, ना ही हमारे प्रोटीन पे कोई चेंज हुआ, बिकॉज यू नो अमाइनो एसिड सीक्वेंस मेक अप द प्रोटीन. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब हो गया कोई ऐसा बेस पेयर चेंज हो जाए जिससे स्टॉप कोडॉन आ जाए. नाउ व्हाट इज दिस स्टॉप कोडॉन? एक ऐसा कोडॉन होता है, अगर UAG, राइट, UGA, अगर कोई ऐसा स्टॉप कोडॉन आ जाए, ऐसा कोडॉन सीक्वेंस आ जाए जिसकी वजह से प्रोटीन का ट्रांसलेशन रुक जाए, यानी कि प्रोटीन की फॉर्मेशन ही रुक जाए, तो उसको हम क्या कह देंगे? नॉनसेंस म्यूटेशन, राइट? एंड थर्ड वन इज द मिससेंस म्यूटेशन. मिससेंस म्यूटेशन मीन्स कोई ऑल्टर्ड आ जाए अगर अमाइनो एसिड, यानी कि अब प्रोटीन में आना था, फॉर एग्जाम्पल इनिशियली आना था लाइसिन, बट चेंज हुआ और आ गया arginine, as you can see here. So this leads to missense mutation. Okay, change in the sequence of protein also, change in the sequence of amino acid also.
नॉनसेंस में क्या होगा, सपोज दिस इज द लॉन्ग प्रोटीन और यहाँ पर आते आते स्टॉप कोडॉन आ गया, तो ये प्रोटीन यहीं पर रुक जाएगा. So it will lead to the formation of a truncated protein, termination of protein, right? और साइलेंट में कोई चेंज ही नहीं होगा. यू पीपल हैव अंडरस्टूड दैट कि कोई भी चेंज नहीं होगा. अमाइनो एसिड अगर चेंज नहीं हुआ तो प्रोटीन में भी कोई चेंज नहीं आएगा. नेक्स्ट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. तो बिफोर आई डिस्कस दैट विद यू, पहले ये समझ लेते हैं कि फ्रेम्स क्या होते हैं. क्या होता है, जब हम डीएनए का सीक्वेंस लिखते हैं तो उसमें तीन तीन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है. तीन तीन बेस पेयर्स मिलके एक कोडॉन बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो दिस टू यू. ATCG, ATCG, ये एक डीएनए का सीक्वेंस है. तो इसमें क्या होगा, जब भी इसका ट्रांसलेशन होना होगा, प्रोटीन बनेगा, सो दिस विल फॉर्म ट्रिपलेट कोडॉन. ये तीन तीन के पेयरिंग बन जाएगी, राइट? सो दीज थ्री base pairs will form one codon. Now you can see ATC is one, GAT is one, CGA is one, right? तो अगर ऐसा हो कि इस डीएनए के सीक्वेंस में ये वाला C मान लो डिलीट हो गया, ठीक है? तो अगर ये डिलीट हो जाएगा, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड कोडॉन्स? नाउ द सीक्वेंस विल बी ATG, क्योंकि C तो यहाँ से हट गया. ATC, GA, इसके आगे T होता, वो बन जाता. तो कैन यू सी ऑल द अमाइनो एसिड्स हैव नाउ चेंज्ड. सो दिस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट मतलब एक इंसर्शन की वजह से या एक डिलीशन की वजह से एक बेस पेयर के पूरी एंटायर सीक्वेंस ऑफ द कोडॉन्स गॉट चेंज्ड. अब कोडॉन चेंज हो गए हैं, तो आपको पता है तीन तीन के कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं. तो क्या होगा, ये CGA जिस भी अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होगा वो बदल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ बन गया GAT. सो दिस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. नाउ व्हाट डू यू थिंक? What do you think now, which is more dangerous, frame shift or point mutation? Yes, of course, frame shift mutation is more dangerous. Why? Because frame shift में पूरी की पूरी sequence of amino acid they get changed. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ. एक मैंने सेंटेंस लिखा है जिसमें तीन ही अल्फाबेट्स हों, ऐसे वर्ड्स बने हैं. द डॉग हैज रेड लेग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ डॉग में मैं I इंसर्ट कर दूं along with O, ठीक है? तो अब मुझे आप बता सकते हैं अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा अमाइनो एसिड का? द DOI, क्योंकि मैंने यहाँ I इंसर्ट कर दिया. GHA, ASR, EDL और यहाँ अलग से G. Do you think it makes any sense now? No, no sense. क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है? Frame shift mutation because of insertion of this. I hope I could make this clear to you. तो frame shift mutation में क्या होगा? अगर एक DNA का पूरा सीक्वेंस है, बेस पेयर्स का पूरा सीक्वेंस है, और उसमें कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक बेस इंसर्ट हो जाए या एक बेस डिलीट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा? एंटायर ट्रिपलेट कोडॉन विल चेंज. ट्रिपल के जो पेयरिंग बनी हुई है दोज विल चेंज, और उसकी वजह से सारे के सारे अमाइनो एसिड चेंज हो जाएंगे. ऑलराइट, ओके. नाउ मूविंग अहेड, ये एक था हमारा पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, राइट? एक तीसरे तरह का म्यूटेशन होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल अबरेशंस या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज. अब इसका क्या मतलब है? क्रोमोसोम, अभी तक हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डीएनए के सीक्वेंस की बात कर रहे हैं. अब मैं अगर एक एंटायर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम लूं, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक सीक्वेंस था ABC, ठीक है, ये एक एंटायर लेंथ है, एक पर्टिकुलर, मैंने यहाँ पर बेस पेयर नहीं लिखा, एक फॉर एग्जांपल 1000 KB का, 2000 KB का या 1000 बेसिस का एक सीक्वेंस है, ये स्ट्रेच है, ठीक है. और अगर कहीं पर
इसमें किसी म्यूटेजन की वजह से, किसी की वजह से ये सीक्वेंस उल्टा हो जाए, बी ऊपर चला जाए, ए नीचे चला जाए और सी, तो ये क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल अबरेशंस, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी, ठीक है। या फिर ये हो जाए ए और सी बीच का बी रीजन डिलीट हो जाए, या फिर ऐसा हो कि बी रीजन का डुप्लीकेशन हो जाए, ए बी बी और सी, ठीक है। तो एंटायर क्रोमोसोम के लेंथ में अगर कोई भी चेंज आता है तो हम उसे कहेंगे क्रोमोसोमल अबरेशंस। लेकिन अगर पर्टिकुलर बेस पेयर्स पे होगा देन वी विल कॉल इट ईदर फ्रेम शिफ्ट और पॉइंट म्यूटेशन डिपेंडिंग व्हाट इज द चेंज इंट्रोड्यूस्ड। Okay, if you look at this diagram very clearly on the right hand side, this one, then you will be able to see यहाँ cat 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 लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको dog has red leg लिख के दिखाया था। तो अगर कहीं यहाँ पर एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, तो G की जगह फॉर एग्जाम्पल C की जगह यहाँ हमने इंसर्ट कर दिया G, तो रिप्लेसमेंट हुआ ना, राइट, C गॉट चेंज इनटू G। पर आप देखो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, बाकी सब जगह CAT 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 ही रहेगा। पर अगर किसी पॉइंट पे यहाँ डिलीशन हो गया, सपोज यहाँ का T डिलीट हो गया, तो अब आप देख पा रहे हो क्या सीक्वेंस होगा? कैट CAC ATC, राइट। सो दिस इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब म्यूटेजेंस क्या होते हैं? म्यूटेजेंस एज द नेम सजेस्ट, एनी म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट, किसी भी चीज जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाए उसे हम म्यूटेजेंस कह देंगे। म्यूटेजेंस कैन बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, ऐसा कहते हैं कि ज्यादा यूवी रेडिएशंस के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए बिकॉज उसकी वजह से बॉडी में म्यूटेशंस हो जाते हैं, डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं। ऐसे ही हीट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर म्यूटेशन। आपने ऐसे सुना होगा कि गर्ल्स दे ऑफन गो फॉर दिस नेल पेंट, आजकल वो नेल आर्ट एंड ऑल, सो उसमें नेल पेंट की ड्राइंग इज डन इन दोज यूवी रेडिएशंस, बट आई वुड सजेस्ट refrain from that क्योंकि वो यूवी रेडिएशंस may cause mutations in the body. Next is the chemical mutagen. Chemical, any chemical which is responsible for causing mutation, जैसे mustard gas हो गई, acetic acid हो गया, formalin हो गया, अगर ये हमारे बॉडी के टच में रहते हैं, so these can cause mutations. There are many more chemicals besides these also. Next is the biological mutation. Biological ऐसे कुछ वायरस जैसे कोविड वायरस, सार्स वायरस, हेलिकोबैक्टर पायरोली, ऐसे कोई बायोलॉजिकल एजेंट जिनकी वजह से म्यूटेशन हो जाएगा, we will call that to be a mutagen. Next is the सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अब ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया? अगर कोई डिजीज की बात करें, आपको पता है वी हैव रेड दैट कि ह्यूमन में फीमेल्स विल हैव 2X क्रोमोसोम्स, फीमेल्स विल हैव 2X क्रोमोसोम्स and males will have only 1X chromosome and other one will be Y, and Y is null because it does not carry any gene. तो इसका मतलब मेल्स के पास सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम है, फीमेल्स विल हैव डबल X क्रोमोसोम। अगर कोई भी डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन या फिर कोई भी डिफेक्ट एक पर्टिकुलर X क्रोमोसोम पे है, राइट, और उसकी वजह से डिजीज हो रहा है, अगर ये रेसेसिव है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है रेसेसिव कोई भी अपने आप को तब एक्सप्रेस करता है व्हेन इट इज इन डबल्स, जैसे आपको पता है कि दिस genotype will be dwarf when it is in double, but this will never be dwarf, this will be tall क्योंकि यहाँ पे T is recessive, right? So same condition here in case of genes also, कि अगर कोई जीन पे डिफेक्ट है और वो डिफेक्ट एक X क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो अगर ये डबल में प्रेजेंट है then only she will be diseased. जैसे अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस की एक जीन होती है। बाय द वे कलर ब्लाइंडनेस मैं आपको बता दूं, कलर ब्लाइंडनेस एज द नेम इज अ मिसनोमर। उनको कलर्स दिखते हैं, जो भी कलर ब्लाइंड होता है दे कैन सी कलर्स बट दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन। आपको पता है तभी ऐसा होता है जब भी ड्राइविंग का टेस्ट होता है तो वो ऐसे ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर ऐसा एक ग्रीन सर्कुलर बैकग्राउंड होगा या रेड सर्कुलर बैकग्राउंड होगा, उसके ऊपर ग्रीन से कोई भी नंबर लिखा होगा,
You all can read this, right? But a color blind person will not be able to read this, क्योंकि उनको green और red दोनों ही color brown नजर आएंगे. So he or she will not be able to read this number as 21. ओके तो अब ये जो मैं कलर ब्लाइंडनेस की बात बता रही हूँ आपको, ये कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से, ये भी एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है विच वी विल स्टडी. सपोज एक कोई फीमेल है और यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है, ठीक है, आई कॉल इट सी, कलर ब्लाइंडनेस की जीन XC, राइट, और यहाँ पर भी है, ठीक है. सो नाउ दिस फीमेल विल बी डिजीज्ड, इसको कलर ब्लाइंडनेस होगा. बट व्हेन आई टॉक ऑफ अ कैरियर फीमेल, एक ऐसी फीमेल है जिसमें एक तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन है और दूसरा क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल है और ये रेसेसिव डिसीज है. डू यू थिंक शी विल हैव डिजीज? आई वांट यू ऑल टू नो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या इसको डिजीज होगी. नो, शी विल नॉट हैव डिजीज. व्हाई बिकॉज ये डिजीज रेसेसिव है और ये क्रोमोसोम डोमिनेंट होगा, ठीक है. तो इस पे ये जो जीन होगी वो ग्रीन और रेड पिगमेंट के लिए वो डोमिनेट कर लेगी एंड शी विल बी अ कैरियर. शी विल ओनली बी कॉल्ड अ कैरियर, शी विल नॉट बी अ डिजीज्ड, ठीक है. और वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं एक मेल की, ठीक है, एक मेल इंडिविजुअल बना लेते हैं, ये एक्स क्रोमोसोम है उसका और ये है एक वाई क्रोमोसोम. अगर यहाँ पर XC है, मतलब एक सिकल सेल अनीमिया की जीन है फॉर एग्जाम्पल, या कलर ब्लाइंडनेस की जीन है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर अगर कलर ब्लाइंडनेस की, नॉट सिकल सेल अनीमिया, आई एम सॉरी, कलर ब्लाइंडनेस की जीन होगी अगर यहाँ पर, तो he will be a diseased person, he will have color blindness. Why? Because Y chromosome पे तो कुछ है ही नहीं, so this is the only X chromosome और वो ही diseased है. There is no other X chromosome to complement, unlike the female जिसमें एक X chromosome पे अगर disease है but the other one is there to take care, right? So now you understood what are these sex linked diseases. These sex linked diseases are transmitted from parent like mother to son. तो इनमें सेक्स लिंक, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है कि सेक्स लिंक डिजीजेस जो होती हैं दे शो क्रिस क्रॉस ट्रांसमिशन. वो अभी आपको मैं पेडिग्री चार्ट में आगे बताऊंगी कि अगर कोई फीमेल है सो दैट विल लीड टू द formation of a there are more chances that the son of that female will have disease. ओके तो अभी के लिए बस इतना ही कि जो सेक्स लिंक डिजीजेस हैं इनकी डिफेक्ट जो होता है वो जी किस क्रोमोसोम के होता है, सेक्स क्रोमोसोम, विच इज इन ह्यूमंस इट इज एक्स क्रोमोसोम. दो एग्जांपल्स हैं कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया. ओके नाउ वी विल स्टडी पेडिग्री एनालिसिस. पहले पेडिग्री एनालिसिस समझ लेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो. पेडिग्री का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी फैमिली के इंडिविजुअल्स को एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में या एक फैमिली ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं देन वी कॉल इट अ पेडिग्री एनालिसिस. इसमें क्या करेंगे हम, मेल वी विल यूज अ स्क्वायर टू रिप्रेजेंट अ मेल, अ सर्कल टू रिप्रेजेंट अ फीमेल, राइट. तो अब क्या हुआ, एंड द मीटिंग विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन बिटवीन देम. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक मेल है और ये एक फीमेल है, ठीक है. ये लाइन बिटवीन देम शोज मीटिंग और ये नेक्स्ट लाइन में इनकी प्रोजनी होती है, इनके अपने बच्चे होते हैं, ठीक है. अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो मतलब वो उनके बच्चे नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हियर, ये इनकी मीटिंग से यहाँ पे देख रहे हो ये रेड इज कनेक्टेड, दिस ब्लू इज कनेक्टेड, दिस रेड इज कनेक्टेड, this blue is connected and this red. So they have 1 2 3 4 5 children. Okay, this is a male boy, sorry male, a boy, this is again boy, this is a girl, this is a girl and that's again a girl, right. तो यहाँ पे इन्होंने डिजीज्ड को रेड से रिप्रेजेंट करा हुआ है. और ये देखो पर यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं, ठीक है. इफ यू कैन सी दिस हियर, ये इसका मतलब है ये जो सन था इनका, he has married a girl which is represented in circle, okay, and they have two children, one daughter and one son,
Same ways here also, their son got married to a lady and they have 3 children now, 2 daughters and 1 son. If you talk about here, their daughter got married to a man and they have 4 children, 2 daughters and 2 sons. I hope you can understand this पेडिग्री चार्ट now. तो पेडिग्री चार्ट में हर एक लेवल पे एक जनरेशन रिप्रेजेंट करी होती है. तो यहाँ पर ये F1 जनरेशन यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ उनके बच्चे and their grandchildren here. So we have 3 generations represented here and the lines joining at the center represents mating और उसके नीचे वाले एरो के नीचे जो भी होगा that will be their offspring. Okay. So next is genetic disorders. अभी हमने पढ़ा कुछ disorders 2 तरीके के होंगे, कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होंगे और कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं. You would have heard of sickle cell anemia, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, डायबिटीज जा रहा है, there are so many disorders, कलर ब्लाइंडनेस है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाएगा. तो वो डिसऑर्डर्स क्या हो गए? जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स 2 तरीके के होंगे, as you can see here, Mendelian and the second one is chromosomal disorders, जिनको हम chromosomal aberrations या फिर chromosomal abnormalities भी कहते हैं. So let us understand Mendelian disorders. Mendelian नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि मेंडल ने क्या डिस्कवर किया था? जीन फैक्टर्स. सो अगर कोई भी डिसऑर्डर किसी पर्टिकुलर जीन की वजह से है तो उसे हम क्या कहेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. तो अगर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दे कैन बी ड्यू टू जीन्स, म्यूटेशन इन द ऑटोसोम और इन द सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसको हम क्या कह देते हैं? एलोसोम्स. राइट. तो अगर ऑटोसोम में है तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर, वो भी 2 तरीके के होंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव. ऐसे ही सेक्स क्रोमोसोम्स में अगर कोई डिसऑर्डर है, सेक्स क्रोमोसोम्स का जैसे सेक्स एलोसोम्स रेसेसिव, यूजुअली रेसेसिव ही होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, जैसे कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है. अब ऐसे ही ये हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अगर ऑटोसोम में है तो हम उसे कहेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर. सेक्स क्रोमोसोम्स में यानी कि एलोसोम्स में वी विल कॉल इट टू बी सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज या एलोसोमल एबनॉर्मेलिटी. अगर जैसे डाउन सिंड्रोम, इसमें 21st क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होता है, वी विल बी लुकिंग एट इट लेटर. And then you have Klinefelters, where XXY chromosome is present instead of XY. तो ये भी क्या हो गया? एक तरह का disorder. Now studying these Mendelian disorders in detail. अभी मैंने आपको बताया था ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव भी हो सकते हैं और सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं. ठीक है. सेक्स लिंक्ड जिसका अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, एक्स लिंक्ड भी कहते हैं इनको. इसका एग्जाम्पल था कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया. ऑटोसोमल रेसेसिव आर देयर इन योर सिलेबस इन डिटेल. सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया. और 2 डोमिनेंट हैं जो आपको अभी पढ़ने हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड डिस्प्लेसिया. ये आपसे डिटेल में नहीं पूछे जाएंगे, बट इनके बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे पेडिग्री एनालिसिस में. आपको एक पेडिग्री एनालिसिस दिया होगा, आपको ये पूछा जा सकता है कि ये जो भी पेडिग्री चार्ट है, इसमें जो भी डिसीज डिस्कस हो रही है, क्या ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है. सो यू विल ऑल हैव टू फाइंड दिस एंड आई विल हेल्प यू विद दैट. ओके, मूविंग अहेड इज द फर्स्ट एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जो अभी मैंने आपसे बहुत डिटेल में पीछे बात करी थी कि ये एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होती है जिसमें रेड या ग्रीन कोन का फॉर्मेशन नहीं होता. तो ये जीन का डिसऑर्डर कहाँ प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर. और इसमें भी ट्रांसमिशन कैसा होगा? क्रिस क्रॉस. क्रिस क्रॉस मीन्स मदर टू सन, सन टू डॉटर. राइट. So this type of transmission of disease is called, all the sex-linked diseases will be transmitted in this criss-cross formation. Okay, now let us understand this example.
यहाँ पर दे रखा है एक फादर है विच इज कलर ब्लाइंड, तो यानी कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिसऑर्डर है। देन मदर इज नॉर्मल यानी कि एक्स एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसमें फादर को एक्स सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है, एक्स सी वाई, राइट। और जब भी अब इसका सेग्रीगेशन होगा सो इट विल बी एक्स सी एंड वाई। और यहाँ पर जब भी इसका ट्रांसमिशन सेग्रीगेशन होगा तो इट विल बी एक्स एक्स। तो अगर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया सो इट विल बी एक्स सी एक्स, दिस विल बी एक्स एक्स नॉर्मल, यहाँ पर हुआ एक्स वाई और यहाँ पर एक्स वाई। तो आप देख रहे हो फादर से ये ट्रेट। अब आपको क्या पता चला कि दिस विल बी अ कैरियर, कैरियर या डिजीज्ड। आई वांट यू ऑल टू राइट इन कमेंट कि ये कैरियर है या डिजीज्ड है। दिस इज कैरियर, व्हाई? बिकॉज शी हैज अनदर एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल टू कॉम्प्लीमेंट। ये कंप्लीटली नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल मेल है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ फैमिली will have 50% chances that a girl will be carrier। ऐसे आपसे परसेंटेज पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपको ऐसे एक चार्ट दिया होगा और आपको ये पूछा जा सकता है what is the probability that the male will be a carrier? 0. What is the probability that the male will be diseased? 0. And all the male will be normal 100%, ठीक है। Now look at another example. Now look at the second example also. तो ये जो बोल्ड से फिल करा होता है, सॉलिड फिल वाले होते हैं, इट मींस दे आर डिजीज्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेल है, सो एक्स सी वाई एंड दिस इज फीमेल, राइट। सो दे हैव 4 चिल्ड्रन, राइट। एक ये सन है इनका, एक ये सन है, एक ये डॉटर है, एक ये डॉटर है, राइट। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे शी मैरिड अ नॉर्मल मैन, तो इसका मतलब यहाँ ये क्या होगी, कैरियर होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्स सी से एक एक्स क्रोमोसोम तो इसके पास आया ही होगा, राइट। मेल नहीं हो सकता कैरियर, क्योंकि मेल ये एक्स, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिजीज है, सो मेल इज दिस ओनली। तो यानी कि इसके पास अगर थर्ड जनरेशन में डिजीज आ रही है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, दिस फीमेल हैज टू बी अ कैरियर, सो दिस फीमेल इज लाइक दिस, ठीक है। जिसकी वजह से जब क्रॉस होगा, राइट, तो जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन है दैट will have the disease, as you can see when this will fuse with this XCY, now this will be a diseased individual, जो ये यहाँ पर दिखा रखा है। तो ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि explain the genotype of third generation first organism। थर्ड जनरेशन का ये है थर्ड जनरेशन, और ये थर्ड जनरेशन का ये है थर्ड जनरेशन, और उसका ये है फर्स्ट मेल। तो आपसे इसका जीनोटाइप पूछा जा सकता है, आपसे फीमेल का जीनोटाइप पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग अहेड विल बी हीमोफीलिया विच इज कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज, जिसको हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में थी। और ब्लीडर्स डिजीज क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा प्रोटीन में डिफेक्ट आ जाता है जो क्लॉटिंग को स्टॉप कर देगा, यानी कि जब भी कभी आपको इंजरी होती है एंड द ब्लड oozes out of the blood vessels, but after some time you will observe that the clotting procedure happens, phenomena of clotting take place, because of which the blood flow stops. But in case of a hemophilic organism, this clotting will never stop, will never ever stop on its own, क्योंकि उनके पास जो प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होता है वो जीन में ही डिफेक्ट है, वो प्रोटीन ही नहीं बनता, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम रॉयल डिजीज फैमिली कहते हैं। ये भी सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक मतलब दिस इज अगेन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो इसमें भी ट्रांसमिशन कैसा होगा, क्रिस क्रॉस ट्रांसमिशन होगा, दैट इज फ्रॉम वन फीमेल टू द सन, सन टू द ग्रैंड डॉटर। नाउ लेट अस सी दिस। ये नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल मेल एक्स वाई, ये है कैरियर फीमेल। आपको पता है क्वीन विक्टोरिया हरसेल्फ वाज कैरियर, जिसकी वजह से उनके सारे सन जितने भी प्रिंस थे दे ऑल वर हीमोफिलिक।
ओके, सो दिस वाज XCX, ठीक है, ये कैरियर थी। तो अब जब भी ये क्रॉस हुआ XY के साथ, तो आपने देखा कि फीमेल जितनी भी थी वो कैरियर हो सकती हैं, लेकिन मेल जितने भी बनेंगे दे विल ऑल बी हीमोफिलिक, ठीक है, एंड दोज फीमेल्स विल बी यहाँ पर दे आर नॉर्मल, ठीक है। अब ये नॉर्मल फीमेल्स हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्रॉस। इस एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। ये एग्जाम्पल कह रहा है कि एक नॉर्मल मेल है, फीमेल इज अ कैरियर, तो इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी, देयर डॉटर्स, दे हैड 2 daughters, both of them were नॉर्मल। एक डॉटर थी जो कैरियर थी, ये देखो हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल रिप्रेजेंट्स कैरियर, या फिर ये शेडिंग भी हो सकती है, इसमें कैरियर रिप्रेजेंट करता है। और एक सन है जो कंप्लीटली कलर ब्लाइंड है, एंड ही गॉट मैरिड टू अ नॉर्मल विमेन, ही गॉट मैरिड टू अ नॉर्मल विमेन, ये है वो नॉर्मल विमेन, ठीक है। और इसके बाद दे हैड 4 children, one son normal, second son normal. Why? Because their mother was normal, and the daughters, both the daughters were carriers. अब इनके आगे जो भी जनरेशन होगी वो मेल सब अफेक्टेड होंगे, ठीक है। Now let us understand the other example now. ये देखो, इसका मतलब this female is hemophilic, इसका मतलब हीमोफिलिक का मतलब अगर मैं HX करके रिप्रेजेंट करती हूँ, सो बोथ हर क्रोमोसोम्स हैव HX एंड दिस मेल इज नॉर्मल। इनके 1 2 3 4 बच्चे हुए, 2 daughters which were normal and both the sons were hemophilic. Hemophilic, why? Because their mother was hemophilic, right? So they had no chance that they were normal. उसके बाद क्या हुआ, their daughter married a normal man but her son was hemophilic. Why? Now you people tell me. क्योंकि यहाँ पे again the same thing, she was carrier, HXX, she was carrier. As a result, when she was carrier, so her son was HXY और वो diseased हुआ. I hope such questions can be solved now. You can very well do these questions. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, this blunder in the family that has happened is this hemophilic man married again a hemophilic female. अब देखो, ये तो completely hemophilic है, HX, HX, और यहाँ पर HXH and Y. So all their children, they were hemophilic. That is why it is very important to consider the family history before the alliance. Nowadays, you people should. Next is hemophilia children. This is another autosomal. अभी तक हम जो भी disease की बात कर रहे थे, they were sex linked. Now this phenylketonuria is an autosomal recessive disorder. So autosomal means it is present on the autosome and it is recessive. तो ये disease तब तक affect नहीं करेगी जब तक ये doubles में present नहीं होगी. And unlike sex linked disorder, इसमें criss cross inheritance नहीं होगा, क्योंकि ये X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, राइट। सो दिस इसके अंदर फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होगा, लैक्स एन एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन। तो यानी कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो फिनाइल एलेनिन है ये एक्यूमुलेट होता रहेगा ब्रेन के अंदर एंड इट रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन. Okay, so now let us understand the examples with the help of pedigree chart here. तो यहाँ ये एक मेल है, यहाँ एक फीमेल रिप्रेजेंट करी है एंड देयर चिल्ड्रन. देखो अब ये दोनों में डिजीज नहीं है बट दे कैन बी कैरियर्स, लाइक राइट. नाउ दे हैव अ चिल्ड्रन, वन चाइल्ड, वन सन बीइंग डिजीज्ड. इसका मतलब क्या हुआ, ये डिजीज्ड कब होगा, क्योंकि अब ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है, ये ए पे प्रेजेंट है, ऑटोसोम वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस. तो इसका मतलब इसके पास दोनों फिनाइल कीटोनूरिया की जीन आ गई,
एक तो मदर से आई होगी, एक फादर से आई होगी, इसका मतलब बोथ ऑफ देम आर कैरियर्स, राइट। अब ये तो ये इंडिविजुअल का जीनोटाइप, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ दिस इंडिविजुअल इन जनरेशन 2, सेकंड इंडिविजुअल ये वाला, इसका जीनोटाइप हो गया एपी एपी, राइट। अब क्या हुआ, ही मैरिड अ नॉर्मल गर्ल, he married a normal girl. It's raining very hard guys now. Okay, so let us focus here. When he married a normal woman, then they had two son and two daughters. Both the daughters were affected and one son was affected. अब ये कैसे हो सकता है कि अब इसका मतलब कि ये फीमेल में भी कहीं से ये कैरियर है, ये तब तक पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपको पता है मेल का अगर ये जीनोटाइप है, ठीक है, सो दिस मेल विल गिव वन ऑफ द क्रोमोसोम टू द चिल्ड्रन, ईदर सन और डॉटर, पर ये तीन बच्चे इनमें से अफेक्टेड हो गए, इसका मतलब दिस मदर ऑफ देम, देयर मदर इज अगेन अ कैरियर, राइट। तो इसमें क्या हुआ होगा, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो मेल है इसका अब ये जीनोटाइप रहा होगा एपी एपी, फिनाइल कीटोनुरिया मैंने रिप्रेजेंट करा पी से, और द लेडी वुड हैव बीन this would have been the lady, this is the man, ये man and this is the lady, right। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, what is the probable genotype of this, what is the probable genotype of this, can you tell me what is the probable genotype of 4 AP because ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, इसका मतलब इसके दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर ये फिनाइल कीटोनुरिया की जीन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई शी इज डिजीज्ड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल हियर इज अगेन, यहाँ पर एक मेल है, देयर इज अनदर फीमेल, they married and they have 5 children, 3 sons and 2 daughters. Okay, out of which one son is deceased, one daughter is deceased. Okay, now they did not marry, their normal children had married, this girl only had married. Okay, and she has 3 children, one son and 2 daughters. Both the daughters are normal but the son is has phenylketonuria. तो इसका मतलब अगर आपसे इसका जीनोटाइप पूछा जाए तो इसका मतलब एपी बिकॉज ही इज डिसीज्ड। तो इसका मतलब ये इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम तो मदर से आया होगा, इसका मतलब मदर वाज अ कैरियर। आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मदर इज अ कैरियर, 100% बिकॉज दिस सन cannot have phenylketonuria unless he get one of the genes from the mother. So I hope now you can answer such questions. ये आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है एक चार्ट बना के explain the type of pedigree analysis. ये ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अगर ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है तो ये डोमिनेंट ट्रेट है या रेसेसिव ट्रेट है। I will take another class. This video is getting quite longer. तो आपको मैं एक और ट्यूटोरियल में I will tell you how to solve such pedigree questions only. Next we have thalassemia. Thalassemia is like sickle cell anemia only. जैसे सिकल सेल अनीमिया में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, सेम वेज वो एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, उसमें अमाउंट कम बनता है, लेकिन थैलेसीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, कुछ डिफेक्ट की वजह से हीमोग्लोबिन की चेन नहीं बन पाती। आपको पता है हीमोग्लोबिन हैज 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। तो अगर डिसऑर्डर एक बीटा चेन पे है तो हम उसे कहेंगे बीटा थैलेसीमिया, अगर अल्फा चेन में प्रॉब्लम है तो वी कॉल इट अल्फा थैलेसीमिया,
राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, दिस इज देयर इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो, कि अगर अल्फा थैलेसीमिया है तो उसकी जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, 16th क्रोमोसोम पे. अगर बीटा हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम है तो उसकी जीन कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 11. Okay, now let us understand this. It is autosomal recessive. Autosomal recessive मतलब again the same thing like phenylketonuria, कि अगर डबल्स में प्रेजेंट होगा then only this will be diseased. अब अगर हम इसको देखें, इसमें both male and female looks normal, पर इनके बच्चों को अगर ये डिजीज आ गई है तो इसका मतलब या तो both parent और either of them is carrier. Now we will understand कि ये कहाँ से आया होगा. Okay, here also we see the mother being hemophilic, thalasemic. मदर थैलेसीमिक है यानी कि AT, ठीक है. इसको ऑटोसोम के ऊपर थैलेसीमिया की जीन है, ये नॉर्मल है या फिर कैरियर भी हो सकता है, ठीक है. बट दिस सन ऑफ हर्स इज थैलेसीमिक, इसका मतलब ये फादर भी क्या है, कैरियर. नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस लाइक कि अगर नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है डिजीज, इसका मतलब कि फादर एक क्रोमोसोम से तो पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि जो दूसरा पेरेंट है वो भी कैरियर है, ठीक है. सो आपको ऐसा पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में कि आप बताओ कि ये जो फादर हैं यहाँ, इनका फिनोटाइप क्या है, इनका जीनोटाइप क्या है, ये वाले फादर का. सो ही इज कैरियर. ओके, ऑल राइट. अब ये देखो, ये दोनों थैलेसीमिक की शादी हो गई है, ठीक है. दे गॉट मैरिड एंड दे हैव 2 चिल्ड्रन, बोथ ऑफ देम आर थैलेसीमिक, क्योंकि सारे ही जीन्स के ऊपर, चारों के चारों, दोनों पेरेंट के दोनों जीन्स के ऊपर थैलेसीमिया की जीन प्रेजेंट है. सो बोथ द चिल्ड्रन आर थैलेसीमिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक दूसरा क्वेश्चन है. अब इसको देखते हैं हम. ये आपको ऐसे पेडिग्री चार्ट दे रखा होगा और ये रेड का मतलब है डिजीज. आपको पूछा गया है क्या ये डिजीज ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है या रेसेसिव है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस. अब ये क्या है, फीमेल है, फीमेल से फीमेल में जा रही है, तो मतलब क्लियर है ये सेक्स लिंक तो नहीं हो सकता, क्योंकि फीमेल टू मेल ट्रांसमिट होता है डिसीज, तो यानी ये ऑटोसोमल हो गया. अब हम देखते हैं ये रेसेसिव है या डोमिनेंट है. अब इसको देखने का बहुत बढ़िया तरीका है एक, अगर कोई भी डिजीज रेसेसिव है, ठीक है, तो यानी कि अगर जब तक दोनों क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट नहीं है वो जीन नहीं, तब तक डिजीज नहीं होगी. अब यहाँ अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये डिजीज नहीं आई, ठीक है. अब ये डिजीज नहीं आई, यहाँ से यहाँ आना तो बनता था ना, अगर मदर हीमोफिलिक, अगर मदर थैलेसीमिक है. इसका मतलब कि ये डिजीज कैसी है, कैसी है ये डिजीज, यस इट इज रेसेसिव. अगर डोमिनेंट होता तो एक भी क्रोमोसोम में से एक भी जीन इधर आती तो सारे इंडिविजुअल्स को क्या होना चाहिए था, डिजीज्ड होना चाहिए था या कैरियर होना चाहिए था, ठीक है. और डोमिनेंट के केस में आपको पता है कैरियर कोई होता नहीं है, इट इज ऑलवेज डिजीज्ड. तो ये बहुत क्लियरली हमें पता चल गया कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सिकल सेल अनीमिया. अभी मैंने आपको बताया था सिकल सेल अनीमिया इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर. इसमें भी क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी इतनी नहीं बनती है. एक्चुअली इट इज अ पॉइंट म्यूटेशन. दिस इज अ पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम में अगर आप देखोगे एक जीन में चेंज आ जाता है. एक अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेम शिफ्ट एंड पॉइंट म्यूटेशन. सो अगेन यू कैन सी दिस लाइक दिस. ये CTC है, ये नॉर्मल में गैग में कन्वर्ट होती है, ठीक है. यहाँ CTC गॉट कन्वर्टेड इनटू CAC, यानी कि एक क्रोमोसोम में चेंज आया, दैट इज T गॉट चेंज इनटू A, CAC, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये गैग mRNA में कन्वर्ट हो गया GUG में. So because of this only one chromosome or one amino acid got changed, that is glutamic acid got changed by valine, ठीक है. यहाँ पे ये हमारी 6th पोजीशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड किससे चेंज हो गया, वैलीन से.
ठीक है, क्योंकि GAG गॉट चेंज इनटू GUG। अब ये एक अमाइनो एसिड की चेंज की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, जो हमारे बाइकॉनकेव शेप होती है RBCs की, दैट गॉट चेंज इनटू सिकल सेल शेप। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सिकल सेल अनीमिया, एंड दे आर नॉट एबल टू रिटेन मच ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ही है, आपको पता है, ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाना। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये सिकल सेल्ड हो जाते हैं सारे RBC cells. Okay, now let us understand a question on this. ये एक दे रखा है आपको, मेल फीमेल, their daughter, their other daughter which is deceased, their son which is deceased, normal son, ठीक है। तो आपसे पूछा गया ये जो नॉर्मल डॉटर है, उसके बाद ये देखो, अब आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हो, मैं आपको एक हिंट देती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ, ये पता करने की कि ये रेसेसिव डिसऑर्डर है कि डोमिनेंट है। अब यहाँ देखो, इस जनरेशन में कोई भी डिजीज नहीं दिख रही थी, यानी कि देवर कैरियर, यहाँ पर आ गई डिजीज, इसका मतलब ये कैरियर है, और कैरियर सिर्फ रेसेसिव के केस में होते हैं, ठीक है। अगर डोमिनेंट डिजीज होती तो यहाँ एक भी अगर क्रोमोसोम में होती तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाती, और डिजीज तो होगी ही होगी, बिकॉज देयर थर्ड जनरेशन, देयर नेक्स्ट जनरेशन कैरीज इट, राइट। तो यहाँ पर ये यहाँ से क्लियरली हमको पता चल गया, ये जो भी हमें पेडिग्री चार्ट दे रखा है ये कैसा है, रेसेसिव का, ठीक है। और ऑटोसोमल और सेक्स लिंक का मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको दिखे so it will be sex linked, otherwise it is yes autosomal। अब आ जाते हैं हम ऑटोसोमल अबरेशंस में। ऑटोसोमल अबरेशंस या अबनॉर्मलिटीज का क्या मतलब होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर, अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स, राइट। सो इन केस these chromosomes got doubled, मान लो पॉलीप्लॉइडी हो गई, मान लो पॉलीप्लॉइडी की वजह से ह्यूमंस का नंबर 46 का डबल होके कितना बन गया, 92, तो ये हो गया पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है कि एन्यूप्लॉइडी के अंदर एक क्रोमोसोम या बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ठीक है। अगर एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो उसे हम कहेंगे ट्राइसोमी, ठीक है। अगर ये एक क्रोमोसोम है, ये बढ़ गया, अब 2 की जगह 3 हो गए, सो वी कॉल दिस कंडीशन टू बी ट्राइसोमी, ओके, ट्राइसोमी। और अगर ऐसा ही हुआ, यहाँ 2 क्रोमोसोम की जगह एक ही रह गया, जैसे टर्नर सिंड्रोम में अभी हम देखेंगे, सो दिस इज कॉल्ड मोनोसोमी, मोनोसोमी, एंड बोथ ऑफ दीज आर aneuploidy, okay, I will show you in the next slide। aneuploidy मतलब क्रोमोसोम में पूरे सेट में चेंज नहीं आता। अगर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 23 पेयर हैं तो पूरे पेयर्स नहीं बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, रादर ओनली 1 क्रोमोसोम विल इंक्रीज और डिक्रीज, और अगर एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएगा वी विल कॉल दैट कंडीशन टू बी ट्राइसोमी, और अगर एक क्रोमोसोम, यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलती है, ट्राइसोमी, और यहाँ पर क्रोमोसोम कम हो जाता है, इसे हम कहेंगे मोनोसोमी। यहाँ देख रहे हो फीमेल के पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं, यू आर अवेयर अबाउट इट, पर अगर कोई एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की वजह से एक X क्रोमोसोम कहीं चला जाता है, नहीं आ पाता, ठीक है, so this will be Turner syndrome। now this is a reproductive problem, this female will be sterile, ठीक है, ओवरीज रूडिमेंट्री होंगी इसकी, ऑल राइट, और बाकी के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नहीं ऑब्जर्व होंगे, सो दिस काइंड ऑफ डिजीज इज अ टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ठीक है, सो सम ऑफ देम कैन बी XXY मतलब दे आर फीमेल विथ मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, ठीक है, उनके पास मैस्कुलाइन अपीयरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, मेल है लेकिन फीमेल के जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, जिसको हम गायनेकोमैस्टेशिया भी कहते हैं, और इस केस में
क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे XXY. XXY means one extra X chromosome, which means this is trisomy. और आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे मंगोली चिल्ड्रन होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से उनको हम मंगोली कह देते हैं। इनमें क्या होता है, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इनमें मेंटल डेवलपमेंट होता है, इनमें पाम क्रीज एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है। हाथ की रेखा को देख के आप बता सकते हो दिस चाइल्ड हैज डाउन सिंड्रोम। उनको लैंग्वेज इश्यूज आते हैं, उनकी टंग फरोड होती है, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 भी डबल होना चाहिए। सो क्रोमोसोम नंबर 21 इज एक्स्ट्रा, वन एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम, बिकॉज ऑफ विच इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम. So I hope now you can very well differentiate between polyploidy and aneuploidy. Aneuploidy भी आपको पता है फर्दर कितने टाइप की होती है, मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी. I hope I could make this clear to you. These are some of the important CBSE questions. कोडोमिनेंस क्या होता है, इसी पूरे चैप्टर से रिलेटेड है, not only this part. कोडोमिनेंस when both the alleles are dominant, जैसे कि ब्लड ग्रुप के केस में हमने देखा. आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बता सकते हैं. आई होप जब भी कोई गेमीट हो, ठीक है, गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पर अगर क्रोमोसोम्स की जो एलील्स है दे गॉट सेपरेटेड, तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ह्यूमंस के बीच में सेक्स कैसे डिटरमाइंड होगा, XX विल बी अ फीमेल एंड XY विल बी अ मेल. क्रोमोसोमल वर्सेस मेंडेलियन डिसऑर्डर, आई होप यू नो. अगर कोई भी प्रॉब्लम जीन में है, सो वी कॉल इट मेंडेलियन डिसऑर्डर, अदरवाइज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. Okay, moving on. Next, competency based questions. You can look at it and please read it. And if you like this, please subscribe. Thank you. Thank you for watching Study Ka Enzyme. Subscribe if you like it. Thank you.